Momentum is what we plan to study and continue today. Momentum was defined as product of mass into velocity. Number one. Number two, we talked about momentum for any system. Stays conserved. This is what we have so far discussed and talked about. अच्छा, अब आते हैं, हमें दो तीन नई बातें आपसे करनी है. सबसे पहले हमें डिस्कस करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. So what is rate of change of momentum? That means let's say we have an object जिसका mass है let's say m, और ये ट्रेवल करता है किसी इनिशियल वेलोसिटी से u से, और for example as it moves ahead it basically slows down due to friction and all, and its velocity changes from u to v. Okay, this is very important. u to v हो गया. u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी. अब हम ये कहते हैं कि भाई अगर हम इनिशियल मोमेंटम बिफोर इट स्लोज डाउन आपसे पूछें इस ऑब्जेक्ट का क्या है, तो सिंपल आंसर इज मास इनटू वेलोसिटी, राइट. एंड फाइनल मोमेंटम अगर हम आपसे पूछें तो उसका आंसर क्या होगा, उसका होगा एम वी. मास तो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो गई. फॉर्मूला फॉर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो यहाँ पे वेलोसिटी u थी तो हमने u लिख दिया, यहाँ पे वेलोसिटी v थी हमने v लिख दिया. अच्छा, व्हाट इफ आई आस्क यू व्हाट्स द चेंज इन मोमेंटम? तो चेंज इन मोमेंटम क्या? So, change in momentum हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? So let's say, let's assign some numbers here. ये था 1 kilograms और ये था 5 meters per second. ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1 into 5, which would be 5. Momentum का यूनिट होता है न्यूटन into second. Now here, if it is 1 kilograms, so this is less than 5. So let's say this becomes 4 meters per second. So this would be 1 into 4, which is 4 newton second. So what's the change? आप देखोगे चेंज में 4 था फाइनली और 5 इनिशियली था, तो 4 minus 5 करोगे, राइट. दैट मीन्स फाइनल मोमेंटम minus initial momentum is the change in momentum. So I'm writing PF minus PI. What is PF? Final momentum. What is PI? Initial momentum. So that's change in momentum. So cutting very long story short, if someone asks us what's the change in momentum, so we can always do final momentum of any object minus initial momentum of that object. We can also write it in this way, delta P. We can also write it in this way, MV minus MU. If all of these things, they show the same thing, that's change in momentum. Okay, change in momentum. How much the momentum has changed. Momentum kitna change hua hai. That's what we are doing here right now. Now, the other part is if we talk about rate of change of momentum. Now that's something new. Rate of change of momentum. ये क्या होगा? So change in momentum तो अभी हमने किया, that's delta P या PF minus PR. ठीक है, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, जिसे आप ऐसे भी लिख सकते हो. But if we talk about rate of change of momentum, so whenever in physics you see anything with rate of, that means you have to do it like this time. You have to divide that with time. Always. I'll give you one example other than this. जैसे आपको शायद याद हो, what is change of velocity? Change of velocity क्या होगा? That would be v minus 2, right? What would be rate of change of velocity? Rate of change of velocity would be something like this, right? So whenever you see anything written with rate of, so you divide that thing with time. ठीक है, you always have to divide this between time. तो जब भी रेट की बात हो रही होगी तो आपको हमेशा ऐसे ही लिखना होगा, जिसमें हमारी ये बात हो रही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग इज बेसिकली टाइम. डिनोमिनेटर में टाइम आता है. ठीक है, तो दिस इज एम वी माइनस एम यू ओवर टू. नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस अ बिट. यहाँ लिखा हुआ है rate of change of momentum equals to m. Can I factorize m? The answer is yes, I can factorize that. So this is rate of change of momentum. M is something that's
स्टैचुरी अलग से बाहर लिखा हुआ है, फैक्टराइज होता है. कैन समवन टेल मी व्हाट्स दिस? v minus u over t. What physical quantity is that? So from kinematics, we know this is acceleration. So acceleration is rate of change of velocity, right? So now this becomes force. According to Newton, F equals to m. According to Newton भाई. तो m a की जगह पे हम लिख सकते हैं f. That means rate of change of momentum is nothing but force. तो अब हमें एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें हमें फाइंड आउट करना होगा फोर्स. और हमें गिवन होगा चेंज ऑफ मोमेंटम, सच एज इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kilograms traveling with 2 meters per second accelerates and reaches up to 10 meters per second. So they want us to find out force, right? So what they have provided us with mass and velocity. So we can do m into v minus u over t, or we can simply do rate of change of momentum. So that is still going to be the same. ठीक है. अच्छा, तो अब क्या करें? हमें ये वैसे तो नहीं नजर आ रहा कि मतलब इसमें कितना जो है उन्होंने हमें टाइम दिया है. तो बाय डिफॉल्ट इट वुड बी ट्रीटेड एज 1 second. So mass is 5 kilograms, v is 10, u is 2 over 1. So this would be 5 into 10 minus 2, that's 8. So this would be 40 newtons as force. तो ये बताओ यहाँ से और यहाँ तक सारी बातें समझ में आती? जो लोग कल क्लास में नहीं थे, जो अब आ चुके हैं, उनको मैं बताता चलूं कि वी स्टार्टेड ऑफ विद मोमेंटम द अदर डे. हमने यहाँ से डिस्कशन अपना शुरू किया था. मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम के लॉस क्या होते हैं, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है. मोमेंटम के कुछ क्वेश्चन हमने किए थे और एक हमने क्वेश्चन वर्कशीट दी थी. यहाँ पे हमने कल स्टॉप किया था. टुडे वी स्टार्टेड ऑफ विद मोमेंटम को एज इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम पढ़ना चाह रहे थे. तो अभी तक हमने जो बातें की हैं उसमें हमने ये बात स्टैब्लिश की है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बेसिकली फोर्स होती है. दैट इज इट. ठीक है. दूसरी एक और बड़े मजे की चीज है. देयर इज दिस इम्पल्स कॉन्सेप्ट. So impulse basically represents only change of momentum, and that is force into time. So impulse is but change of momentum, not rate of change of momentum, equals impulse. ठीक है. और हमने कहा था अगर हमारे पास लिखा हुआ हो rate of change of momentum, so that is basically force. So this is the very important difference. So if we only have change of momentum, that becomes impulse. If we have rate of change of momentum, that becomes force. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात. तो आप कुछ इम्पल्स के भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं. तो सबसे पहला हम क्वेश्चन करते हैं. लेट्स से कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फोर्स needed to hold a gun in position if it fires 100 bullets each second with a velocity of 10 meters per second. Mass of each bullet is 10 grams. तो पहले से रीड करो, फिर सोचो, फिगर आउट करो क्या करना है. जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो ये यूज करेंगे.
ओके, सो आई बिलीव यू मस्ट हैव ट्राइड इट, लेट्स डू इट नाउ। वो कहता है वी हैव अ mass of each bullet। अच्छा, कहानी इस तरह से बन रही है कि लेट्स से दैट्स अ गन, राइट, एंड दिस इज गोइंग टू फायर बुलेट। और वो कह रहा है कि इन टोटल 100 बुलेट्स आर फायर्ड। ठीक है, एक बुलेट तो फायर नहीं की गई, और हमें ये पता करना है कि इस गन को पकड़ने के लिए हमें कितनी फोर्स जो है वो ये संभाल के यानी ये लगानी है अपने हाथ। तो मास हमें सबसे पहले तो किलोग्राम्स में चाहिए होता है, तो 10 डिवाइडेड बाय 1000 इज गोइंग टू गिव मी 0.01 किलोग्राम्स। Now, V is the speed with which the bullet is fired, that is 10 meters per second. And obviously, once the gun is not fired, then there is no speed. So V is 10, but U is 0, क्योंकि जब बुलेट इसमें से निकलेगी तभी उसकी कोई ना कोई स्पीड होगी ना। तो इनिशियली तो बस में थी, किसी ने फायर ही नहीं किया, राइट, और टाइम उन्होंने हमें दिया 1 सेकेंड। बट देर इज वन मोर थिंग, दिस दिस गन इज नॉट फायरिंग अ सिंगल बुलेट, राइट? This basically gun is firing 100 bullets. So we have to multiply it with 100 as well. So this becomes 1 if you multiply this into 10 over 1. So this would be 10 Newton. ये बताओ, ये बात समझ में आती है? Now let's move on. Question number 2 कहता है calculate calculate the impulse on a car driver who massive 10 kilo, no, 100 kilograms, and the car brakes accidentally from 10 meters per second to 1 meters per second in 5 seconds. How would you go about it? Let's see. एक दो मिनट में वेट करता हूँ, फिर मैं चलो लेट्स ट्राई। तो इट सेज कैलकुलेट द इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन मोमेंटम, राइट? ये हमने लिखा था अभी, चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना? दैट वाज इम्पल्स। तो अब चेंज इन मोमेंटम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो चेंज इन मोमेंटम वुड बी एम बी माइनस यू। तो मास कितना है? 100,
V कितना है 10 और U कितना है 1. So this would be 100 into 9. That's 900 newtons. That's the impulse. ठीक है, सॉरी न्यूटन सेकंड, फोर्स नहीं है, इम्पल्स. ये बताओ, ये बात समझ में आती है सबको? अच्छा, इसके साथ साथ एक और काम हमने करना था, वो ये था कि कल हमने जो आपको वर्कशीट दी थी उसका डिस्कशन हम आज कर लेते हैं आपसे. ये आपकी असाइनमेंट में था कल, तो आई होप आपने किया भी होगा. यहाँ से शुरू करते हैं. इट सेज figure 2.1 shows a dummy of mass 70 kilograms in a crash test to investigate the safety of a new car. The car approaches a solid barrier at 20 and it stops suddenly. So this is U, 20, and this is V, stop suddenly. Calculate the momentum. So momentum before the crash, you know, momentum before the crash would be mv. So mass kitna hai 70 or before the crash it was moving with 20. So this would be 1400 Newton second. Okay, that is the simple answer. Now it says that there is a hammer. Mass of hammerhead is this. It hits the nail with this, and the time that it takes is this. Calculate the change in momentum. So change in momentum कैसे calculate करते हैं हम? This would be v minus u. So mass कितना है 0.15 और किस velocity से ये hit कर रहा है? So that is 8. Initially ये 0 होगा. So 8 multiplied by 0.15. So that is 1.2 Newton second. ठीक है, let's move ahead. यहाँ पे वो ये कहता है कि देर इज अ कोलिजन दैट इज हैपनिंग. कैलकुलेट द मोमेंटम बिफोर कोलिजन. तो इसका मास कितना गिवन है भाई? इंजन का मास है 0.50 और इंजन की वेलोसिटी कितनी है 0.32. तो मास इंटू वेलोसिटी सिंपल, 0.50 इंटू 0.32. तो ये आ जाएगा 0.16 न्यूटन सेकेंड. हमने फॉर्मूला क्या यूज किया? P इज इक्वल्स टू एम वी. दिस इज एम, दिस इज वी. ठीक है. फिर वो आपसे कहता है नेक्स्ट स्टेप में, क्या कहता है भाई? वो कहता है द मास ऑफ द ट्रक इज 0.3 किलोग्राम्स. ठीक है, फाइंड आउट द स्पीड. कोई मसला ही नहीं है, ये भी हमने कल किया था, ये भी कर लेते हैं. तो देयर इज दिस लॉ दैट स्टेट्स मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन स्टेज सेम. तो जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं ली थी, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये हमने करना है. ठीक है जी. अच्छा जी, अब आते हैं बिफोर कोलिजन कितना था. तो बिफोर कोलिजन इसका तो मोमेंटम जीरो था. Why was this zero? Because this was stationary. तो जब वेलोसिटी होगी नहीं, मोमेंटम नहीं होगा. हमने इंजन का मोमेंटम निकाला है 0.16. आफ्टर दैट क्या होगा? जब कोलिजन होगा, जब ये जाके इसको हिट करेगा, टकराएगा, जोर से मारेगा और इट इज टू मूव टुगेदर. तब हम देखते हैं कि जब इंजन और स्टेशनरी ट्रक दोनों कंबाइन होके जा रहे होंगे, तो हमें मोमेंटम जब फाइंड आउट करना होगा तो वो क्या होगा? तो मोमेंटम तो हमें पता नहीं है क्या है, बट हमें मास पता है. बल्कि एक और काम करते हैं, आई हैव एन आंसर, जबरदस्त, गुड जॉब. तो हम लिख लेते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इसी में प्लग इन कर लेते हैं, दैट इज 0.16. मोमेंटम आफ्टर कोलिजन कितना है? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन में हमें मास पता है 0.30. ये ट्रक का मास है और इसके साथ इंजन कंबाइन हो गया है. हाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, देखो दोनों साथ जा रहे हैं, इंजन भी और ट्रक भी कंबाइन हो गए, कंबाइन होके साथ जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल के जा रहे हैं. ठीक है. तो
अब जब ये कंबाइन होके जा रहे हैं तो क्या होगा? तो होगा ये कि दोनों का मास ऐड हो जाएगा। तो 0.30 ये मास था स्टेशनरी ट्रक का, और 0.50 मास है किसका? 0.50 मास है मूविंग इंजन का। ठीक है जी। तो मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है इसकी हमें नहीं पता कितनी है, तो दैट्स बी। तो इक्वेशन वुड बी 0.16, दैट्स द मोमेंटम बिफोर कोलिजन, इक्वल्स 0.80 वी। ठीक है, तो v वुड बी इक्वल्स टू 0.16 डिवाइडेड बाय 0.80, तो दैट्स 2 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पे ये करना था। और हमारे पास जो चैट में आंसर था, दैट वाज आई थिंक क्लोज टू इट, सॉरी, 0.2 मीटर्स पर सेकेंड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, लेट्स मूव अहेड। और कौन से क्वेश्चन दिए थे हमने? हाँ, और कोई क्वेश्चन नहीं दिया। तो अब मैं मोमेंटम के कुछ और क्वेश्चन आप लोगों को भेज रहा हूँ, आपने वो ट्राई करने हैं। लेक्चर जो हमारा है आज का वो भी मैं आपको भेज रहा हूँ, मैं वो भी ट्राई करना है। उसके बाद फिर हम उनका डिस्कशन भी करते हैं आपसे। पहले आप ट्राई कर लो, फिर हम उनका डिस्कशन करें। तो बेटा आपके ग्रुप पे मैंने एक फाइल शेयर की है, आप इसमें से लेट से 5 MCQs ट्राई करो, फिर हम इनका डिस्कशन करते हैं।
बेटा 5 MCQs हो गए। दोबारा बोलना बच्चा, 3 MCQs क्यों नजर आ रहा है, बाकी MCQs कहाँ गए? क्या कैसे हो सकता है? 3 ही MCQs हैं, चलो 3 ही MCQs कर लो मेरा बच्चा, 3 ही MCQs कर लो। मैंने तो इसलिए 5 बोले थे क्योंकि इतने चैंपियन बच्चे हैं हमारे पास जो खोल के भी नहीं देख रहे वर्कशीट जिन्हें मैं भेज रहा हूँ। तो इसलिए मैंने कह दिया था कि फर्स्ट 5 MCQs कर लो, जबकि थे ही 3। तो ये अच्छा हुआ आपने कम से कम देख लिया। तो अब हम इनके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, तो आज का हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। It says an object of mass accelerates from 2 to 10. What is the impulse? तो impulse क्या था? चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? m × v - u, राइट। तो 50 किलोग्राम्स, v कितना होगा? 10, और u कितना होगा? 2। तो 50 × 8, दैट इज 400। ठीक है, तो दिस इज 400 N/s। ये बताओ, ये समझ में आती है बात? Question 2 says the gas molecule strikes the wall of a container. The molecule rebounds with the same speed. What happens to the kinetic energy and what happens to the momentum of the molecule?
तो अभी काइनेटिक एनर्जी का तो इतना कोई खास कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन जस्ट डोंट टेक इट के बस हमें कुछ आता ही नहीं है। इट्स नॉट अबाउट दैट। एनर्जी हमारे सिलेबस में दो टर्म्स में होती है। वन इज नोन एज पोटेंशियल एंड द अदर वन इज नोन एज काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस क्या? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में मेन डिफरेंस ये होता है कि पोटेंशियल एनर्जी होती है फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स विच आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन हाइट, जमीन से कुछ ऊपर हो, जैसे फैन हो गया, ठीक है, या कोई फ्रेम आपने लगाया हुआ है, या आपने लाइट्स लगाई हुई है, वॉल्स की बात कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी हर उस ऑब्जेक्ट के पास होता है जो मूविंग, किसी भी फॉर्म। वेरी सिंपल। अच्छा, अब आते हैं, वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल है जो यूं जाके हिट हो रहा है और वापस आ रहा है। लेकिन मजे की बात ये कि रीबाउंड विद द सेम स्पीड, यानी कि जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से गया। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इसके पास पहले थी तो बाद में भी होगी, और ना ये स्लो है ना ये फास्ट हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी स्टेज दी सेम होना चाहिए। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज इट इज नीदर स्लोइंग डाउन नॉट गेनिंग अप, कुछ भी नहीं हो रहा। व्हाट हैपेंस टू मोमेंटम? दैट पार्ट इज ट्रिकी। मोमेंटम को हमें ये देखना पड़ेगा कि मोमेंटम में फर्स्ट इट वाज टुवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड सेकेंड इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड का मोमेंटम और लेफ्ट हैंड साइड का मोमेंटम डिफरेंट है, क्योंकि चेंज हो गई है डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज हो गई। जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मोमेंटम चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने डे वन लर्न किया था कि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटीज चेंज व्हेन डायरेक्शन चेंजेस, तो इट चेंजेस। ठीक है, ये बताओ, ये बात समझ में आती है? नंबर थ्री, विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इन न्यूटन सेकंड? तो इट इज वेरी सिंपल। न्यूटन सेकंड में कौन मेजर होता है? इम्पल्स। बी नहीं, मोमेंट नहीं, मोमेंटम एक अलग चीज है, मोमेंटम, मोमेंट एक अलग चीज। ये बताओ, यहां तक सबको बातें समझ में आती हैं? चलो, देन लेट्स एंड दिस। अब यहाँ तक हम रखते हैं, बाकी बातें आपसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको रिकॉर्डिंग मैं भेज देता हूँ, आज की क्लास की भी और कल की क्लास की भी अपलोड हो जाएगी अभी, तो आप देख लेना उसको, ठीक है? ठीक है, अल्लाह हाफिज़।